Good morning and Jai Hind, my dear student. Children, as I promised yesterday class, that in the next class I will just elaborate the total biotechnology in detail. The principle of biotechnology, the application of biotech, all the things related to biotech, we shall elaborate in the next class. And today, as my promise, I am just going to elaborate all the things related to biotech. मैं जानता हूँ ये टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था, दोनों ही चैप्टर्स इनफैक्ट बायोटेक से जुड़े हुए ये टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स थे, थ्योरेटिकल चैप्टर्स नहीं थे। यहाँ पर हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की अलग अलग टूल्स के बारे में देखा, किस तरीके से किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, फोरेंसिक लैब में, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस लैब में, हम जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले लैब में हम किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। एज यू आर सीइंग हियर दैट बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज application of technology using the living organisms to obtain useful products। बायोटेक के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन काइंड, फॉर मैन काइंड, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस द इंडस्ट्रीज। देखिए, ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दिया है, biotech is the use of living organisms and their component in agriculture, food, and other industrial process in medicinal sector. As you have seen the genetically engineered insulin, you have seen the gene therapy, you have seen the molecular diagnosis, that is the test diagnosis for several severe disorders, and it is the application of scientific and engineering principles of the processing of materials by biological agent to provide goods and service. Holton Lilly. So, children, you are seeing here that it is based on the genetic engineering in which manipulation of genes takes place. Microorganisms are being used. That's why this technology is said to be as biotechnology. As your main subject is biology, children, so you should know very well that there is a great scope of biotech in our market, in our surrounding, in forensic labs, in forensic applications, in the pharmaceutical companies. So many aspects, so many scopes of biotech are there in the environmental sector, in agricultural sector. You will see lot of things. We have seen about BT cotton, potato, tomato, BT corn. We have seen the pest resistant plants. We have seen the RNAi, that is RNA interference. So many things related to biotech, which we are going to discuss now. So, as you know that biotechnology is also known as recombinant DNA technology, because during genetic engineering we manipulate the genes, we take the gene from target DNA and add this gene into vector DNA. So in this way we make the recombinant DNA. That's why this technology is said to be as R technology or recombinant DNA technology. And such DNA having an extra piece of gene is known as recombinant DNA or chimeric DNA, children. So the production of unique DNA molecule by joining together two or more DNA fragments which are not normally associated with each other. Okay, so in this way we form the recombinant DNA, and that's why this technology is said to be a recombinant DNA technology। ये definitions तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों। recombinant DNA टेक्नोलॉजी में हम प्रोडक्शन करते हैं यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल का by joining together two or more DNA fragments are not normally associated with each other, जो आपस में जुड़े नहीं थे, जो अलग अलग डीएनए से बिलोंग करते हैं, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले आकर जब हम क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ लेते हैं, तो इस तरीके से बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बनता है, जिसको पहली बार डेवलप किया था बोयर एंड कोहेन ने। ध्यान दीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का पूरा श्रेय सबसे पहले बोयर एंड कोहेन को जाता है, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्टली in 1973, बोयर एंड कोहेन।
So my dear kids, you are seeing here the स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर स्टेप्स की बात करें, इस पूरे स्टेप्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इसके टूल्स को देख लिया जाए लाइन से। यह देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है बच्चों आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग यूज करते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर अग्रोस जेल यूज किया जाता है बच्चों। दिस इज अगार अगार जेल obtained through red algae, Gelidium and Gracilaria। ये अगार अगार जेल है बच्चों, जिसको जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया both are belonging to class Rhodophyceae, that is red algae। Okay, and agarose gel is used due to its sieving effect। यहाँ पर अगरोथ जेल इसीलिए यूज किया जाता है बच्चों क्योंकि इसके अंदर सीविंग इफेक्ट है, चलनी, आटा चालने वाली जो चलनी होती है, दैट इज सीव। तो सीविंग इफेक्ट होने की वजह से यह डीएनए यहाँ पर सेपरेट होते हुए नजर आएंगे। एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन हियर एनोड इज बीइंग फिक्स्ड। यहाँ पर एक एनोड लगाया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है बच्चों। और जबकि ये वेल्स दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इन वेल्स के अंदर बल्क जीनोमिक डीएनए को भर लिया जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दिस इज अगरोथ जेल। We are doing gel electrophoresis in which we use this agar-agar or agarose gel obtained through red algae, Gelidium and Gracilaria। Agarose gel is used, please mind it children, agarose gel is used due to its sieving effect, and here wells are created in which bulk genomic DNA are being poured, and in opposite direction a positive electrode, that is anode, is being fixed। Since we know very well that DNA is negatively charged, ध्यान दीजिएगा, हमें पता है बच्चों कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। एंड सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दे कैन फोर्स टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसीलिए इनको फोर्स किया जा सकता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें और सीविंग इफेक्ट की वजह से आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। Smaller the fragment, ध्यान दीजिए, smaller the fragments farther it will move and larger the fragment nearer it will move। आप समझ सकते हैं क्योंकि यह सीविंग इफेक्ट की वजह से आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो जितना ही स्मॉलर डीएनए का फ्रेगमेंट रहेगा उतना दूर जाएगा और क्लियर कट हमें अभी नजर नहीं आएगा, इसको सेपरेट करने के बाद भी यह नजर नहीं आएगा। देन आफ्टर वी हैव टू स्टेन दिस विथ इथिडियम ब्रोमाइड। इसके बाद बच्चों हम इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करते हैं। एंड देन आफ्टर वी प्रोवाइड यूवी एक्सपोजर, और यूवी रेडिएशन, यूवी एक्सपोजर के फलस्वरूप ही हमें ये ऑरेंज रेड कलर के बैंड्स डीएनए के नजर आएंगे। यहाँ एक चीज और आप नोट कर लेना बच्चों कि इस जो सेपरेटेड डीएनए है, जब इसको हम रिमूव या सेपरेट करेंगे जेल से, जेल मीडियम से, then that process is said to be as elution। So many times it has been asked in your exam that what is elution। तो जानते रहिए आप, इल्यूशन जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं तो सेपरेटेड डीएनए बैंड को हम ये एग्रो जेल से आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, एंड दैट सेपरेशन इज सेड टू बी एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उस सेपरेशन को कहा जाता है बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चूंकि अग्रोथ जेल और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर टूल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया गया, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला स्टेप रहेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वहां पर इस टूल्स को हम यूज करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड टूल, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। अब आप एक क्लोनिंग वेक्टर को देख रहे हैं बच्चों। मैं जानबूझ के आज आपको, चूंकि बायोटेक्नोलॉजी पूरा इलेबोरेट करना ही है, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग पूरा का पूरा बायोटेक देखेंगे, भले ही 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास लग जाए, लेकिन हम पूरा का पूरा बायोटेक एक बार इलेबोरेट करेंगे, जिससे कि चीजें आपको क्लियर कट वे में अच्छे तरीके से जो है आपको कंठस्थ हो जाए, ताकि आप अच्छे से बोर्ड में जो है डिलीवरी कर सके। तो अब हम लोग बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्लोनिंग वेक्टर की। बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, लिसन वेरी केयरफुली, क्लोनिंग वेक्टर्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए of some microbes like bacteria and bacteriophages
हैविंग सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते हैं, सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर। तो सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर को चुनने के लिए हमें उसके स्पेशलिटीज को भी पता करना होगा, उसके रिक्वायरमेंट्स जानने होंगे कि हमें एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर कैसा चाहिए। Children, usually the cloning vector is the extra chromosomal DNA obtained through Escherichia coli bacteria, that is E. coli. In 11th class also we have studied that the E. coli bacteria is very beneficial, live in our large intestine and kill the harmful bacteria, and its DNA, its extra chromosomal DNA is frequently used in genetic engineering. And right now children, we are discussing genetic engineering. So you are seeing here that the cloning vector is commonly known as plasmid, obtained through the Escherichia coli bacteria. And the specialty, the requirement of cloning vectors, what are the requirement? Number one is the target site और रिकॉग्निशन साइट। ये देखिए, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टारगेट साइट या रिकॉग्निशन साइट का होना, क्योंकि इस टारगेट साइट और रिकॉग्निशन साइट पे ही हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम की मदद से कट करेंगे बच्चों, और इसके बाद अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, टारगेट जीन को डीएनए लाइगेजेज एंजाइम के थ्रू जोड़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, यह साइट सेम होना चाहिए, क्योंकि इसको कट करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम से, और उसी एंजाइम से हम टारगेट डीएनए में से टारगेट जीन को भी कट करते हैं। सेकेंड वन इज ORI, that is origin of replication, and third one is the selectable marker। origin of replication होना चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करा सकें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो हमारा एम है। एंड थर्ड वन इज सेलेक्टेबल मार्कर, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। यहाँ पर आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट देख रहे हैं, या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट या किनामाइसिन रेजिस्टेंट भी हो सकता है बच्चों। एंड लेट अस सी द थर्ड टूल, that is very important, restriction endonucleases enzyme belonging to the very large group, that is nucleases cutting the nucleic acid. But restriction endonucleases enzyme is commonly known as seizure of biotechnology, seizure of genetic engineering, because it cuts the DNA at a specific site that is well known as palindromes or palindromic nucleotide sequences। आप देख भी रहे हैं बच्चों कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों में ही सेम सीक्वेंस रहेंगे पैलिंड्रोम्स के, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम के थ्रू कट करेंगे। दोनों ही डीएनए के ब्लंट एंड्स को यह कट कर देगा और स्टिकी एंड्स को छोड़े रखेगा, जो बाद में आपस में डीएनए लाइगेजेज एंजाइम के थ्रू जुड़ जाएंगे। एंड इन दिस वे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड। ओके, दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज सेड टू बी एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए technology। And you know very well that the palindromes are the special region of DNA, same readable from both the side। So my dear kids, these are the various tools, restriction endonucleases enzyme you are seeing, cloning vector you are seeing, and this one is gel electrophoresis। And after these tools, let us discuss the various steps of recombinant DNA technology। Here you are seeing the isolation of selection of foreign DNA, selection of suitable cloning vector, isolation of target gene through restriction endonucleases, cutting of target site through restriction endonucleases, the same enzyme, and then joining of the target gene into cloning vector through DNA ligases। In this way, rDNA or recombinant DNA is formed, which is incorporated into suitable host, that is known as transformation। And when the host cell divide, the cloning vector also multiplies। This one is the various steps of the biotechnology of recombinant DNA technology, children। And now after recombinant DNA technology, see another principle of biotech, that is PCR, polymerase chain reaction। In polymerase chain reaction, children, we have seen that a small amount of nucleic acid of any pathogens cannot be detected, but that can be amplified in several copies for screening and identification of particular disease, hazardous disease, fatal disease such as AIDS, HIV/AIDS, hepatitis, COVID-19. These are tested, these are diagnosed, these diseases are diagnosed through special technique based on PCR, that is polymerase chain reaction। बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने देखा, आज मैं थोड़ा स्पीड अप हूँ, गियर चेंज करके पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि आप बायोटेक प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आज मैं डेलिबरेटली आपको पूरी ही चीजों को इलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा गियर अप हो, आप पूरा अटेंटिव रहिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ सके। नाउ यू आर सीइंग द डायग्राम ऑफ पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। As you know that it includes three steps, which are denaturation of DNA strand, mixing and annealing, and finally extension। यहाँ पर बच्चों पहले स्टेप में डीएनए के जिस रीजन को हमको एम्पलीफाई करना है, वहां हम हीट का एक्सपोजर करते हैं, हीट की सप्लाई करते हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकन डाउन हो जाने के बाद यह दोनों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो जाते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ प्राइमर्स जोड़ते हैं। एज यू नो दैट प्राइमर्स आर द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स which are the complementary to the template strand and having capability for extension। और इसके बाद थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर हीट की सप्लाई किए हैं, इसीलिए एक ऐसे पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया जाता है दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया। आपको याद होगा बच्चों, यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज टैग पॉलीमरेज, TAQ, टैग पॉलीमरेज obtained through a bacterium Thermus aquaticus, which is thermostable bacteria, okay, so which will be active in the heat condition also, and in this way extension of primers takes place and formation of DNA regions occur, and finally after 30 cycle 1 billion copies are being formed। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपी बन जाता है, जिससे हम आसानी से किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। देख भी रहे हैं आप इस डायग्राम में, यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रीजन, और इस रीजन को हमें एम्पलीफाई करना है। हम पहले यहाँ पर डीनेचुरेशन करते हैं, देन आफ्टर वी ऐड द प्राइमर्स, मिक्सिंग एंड एनीलिंग, एंड देन एक्सटेंशन इज अकरिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम। पीसीआर बच्चों, पीसीआर की एप्लीकेशंस मेडिकल साइंस में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में है। हम लोग आगे देखेंगे अभी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में कि किस तरीके से पीसीआर को बेसिस बनाया गया एचआईवी एड्स के डायग्नोसिस के लिए। दैट इज वेल नोन एज एलाइजा, दैट इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड थ्रू पीसीआर we just produce the multiple copies, we amplify the multiple copies of the DNA region, specific DNA region of the pathogens, and in this way we easily detect the positive or negative status of the person related to severe disorders such as HIV, AIDS, such as COVID-19 and such as hepatitis B। तो आपने देखा पीसीआर का रोल मेडिकल साइंस में। टीआई प्लाज्मिड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, जो कि तमाम डाइकॉट प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता था। और इसी तरह आंकोजेनिक वायरसेस, जो कि आंकोजीन डाल के कैंसर काज करते हैं। आपने हेल्थ एंड डिजीज में कैंसर भी पढ़ा है। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसको एक नोबेल स्ट्रेटजी तैयार किया। उन्होंने इसके जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बैक्टीरिया के या आंकोजेनिक वायरसेस के जो जीन डिलीवरी करने की क्वालिटी है, उसी क्वालिटी को यूज करते हुए उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए इस प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर बनाया दैट दे डू नॉट नाउ कैरी द जीन्स causing disease, now they carry the genes of interest, now they carry the gene of our interest which is target gene or transgene, okay। तो टीआई प्लाज्मिड, और उस वेक्टर को क्या कहा गया, टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि यह ट्यूमर इंड्यूस करता था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, इसीलिए उस प्लाज्मिड का नाम रखा गया टीआई प्लाज्मिड, ओके बच्चों। and TI plasmid, and then after we have seen the direct gene transfer method also, which are electroporation, microinjection, and biolistic gun or gene gun। इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन में तो हम लोगों ने देखा था डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और जबकि इलेक्ट्रोपोरेशन में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनसे एक टेम्परेरी फोर्स बनाया जाता है। और जबकि जीन गन या बायोलिस्टिक गन के थ्रू बच्चों हम डायरेक्टली टंगस्टन कोटेड आरडीएनए को प्लांट सेल्स के न्यूक्लियाई में इंसर्ट करते हैं, दैट इज जीन गन और बायोलिस्टिक गन, दैट इज बम्बार्डिंग इज अकरिंग, बम्बार्डिंग करते हैं यहाँ पे हम टंगस्टन कोटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। तो बच्चों आपने लास्टली प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ही लास्टली आपने बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स भी देखे थे। बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स
जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस किए जाते हैं, स्पेशली इन बायोरिएक्टर्स in which optimal condition for growth can be maintained, pH, temperature, salt, vitamin, substrate can be maintained. Okay, and 100 to 1000 liter of microbial culture can be processed easily. So, my dear kids, after principle of biotechnology, let us see the application of biotech, which is a very huge, very vast scope of biotech. You know that application of biotechnology in medical biotechnology, agricultural biotechnology, environmental biotechnology, in several sector the application of biotechnology is present. So first of all we shall discuss about the biotechnology in agriculture. एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखा था बच्चों, हमारे पास तीन तरीके होते हैं एग्रीकल्चरल यील्डिंग को बढ़ाने के लिए, विच आर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। हमने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ बाउंड्रीज थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मेन्योर्स को यूज कर रहे थे जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं थे, हमारे प्लांट की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स अपने केमिकल्स को ऐड कर दे रहे थे सॉइल में, जो फाइनली हमारे अंदर पहुंच जाते थे और बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू हमारे बॉडी में या प्लांट्स के अंदर मैग्नीफाई होने लगते हैं और फाइनली डिसऑर्डर काज करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी यील्डिंग को कम कर देते हैं और हमारे अंदर भी सेवरल डिसऑर्डर काज करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने देखा बच्चों कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी जो है वही सबसे अच्छी एग्रीकल्चर का तरीका है, एंड एस्टिमेटेड दैट $6 billion मार्केट इन 2005। ओके, इट रिड्यूसेस द आवर रिलायंस on chemical pesticides and chemical fertilizers. It reduces the post-harvesting loss. It enhances the nutritional quality of food, such as high protein and vitamin content in food. Okay, so in agricultural sector we have seen the application of biotechnology, and in agricultural sector we have seen one more novel strategy adopted by biotechnologists, which is RNAi, RNA interference और RNA silencing, जहां पर हम लोगों ने देखा था बच्चों कि डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाकर हम पैथोजेंस के मैसेंजर आरएनए को साइलेंट करते हैं। और बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था यहाँ पर मिलोइडिगाइन इनकोग्निशिया, मिलोइडिगाइन इनकोग्निशिया, दैट इज द नेमाटोड थ्रेडवर्म and the pathogen of tobacco plant and causes great reduction in tobacco yielding. And just prepare the double stranded complementary mRNA, complementary double stranded RNA, which is complementary to mRNA of Meloidigyne incognita, and through silencing we protect the tobacco plant and can enhance the tobacco yielding. So since we are interfering the codons of mRNA, that's why it is said to be as RNA interference or RNAi. And since we are silencing the effect of the expressions of codons of mRNA, that's why this process is known as RNA silencing. Okay, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इसको आरएनए स्प्लाइसिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। आरएनए को साइलेंट किया जाता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन को साइलेंट किया जाता है और साइलेंट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्रिटी का बेसिस आपको मालूम है, कई चैप्टर्स में आपने देखा कि एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है बच्चों। Now see the biotechnology in medical field. हम लोगों ने मेडिकल फील्ड, इन्वायरमेंटल फील्ड, एथिकल इश्यूज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तमाम फील्ड्स में बायोटेक को देखा। और अब हम लोग मेडिकल फील्ड में बात करने जा रहे हैं बच्चों। मेडिकल फील्ड्स में बायोटेक का यूज जीन थेरेपी में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस and genetically engineered insulin, as well as the transgenic animals in which vaccine safety testing is occurring. That's why all the things are related to medical application of biotech. First of all, you are seeing here children the genetically engineered insulin. मैंने बताया था आपको कि इंसुलिन भी कई एंजाइम्स की तरह हमारे बॉडी के अंदर प्रो हार्मोन के फॉर्म में सीक्रेट होता है, दैट इज वेल नोन एज प्रो इंसुलिन, having 1A, 1B and 1C peptide chains. Okay, but during activation C peptide is being removed and A and B peptides are joined together through disulfide bridge. Disulfide bridge के थ्रू जुड़े होते हैं।
ह्यूमन इंसुलिन में ए और बी पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन containing 30 amino acid and A peptide chain containing 21 amino acid. In this way, we have seen that there are 51 amino acids. Baylis and Sterling of Eli Lilly Company, pharmaceutical company of America, in 1983 just isolated two genes corresponding A and B peptide, and through biotechnology they prepare multiple copies of A and B peptide chains and join together through disulfide bridge. In this way, they prepared the genetically engineered insulin and got the Nobel Prize. Now see the another aspect of biotechnology in medical sector, that is gene therapy. आप जानते हैं बच्चों, जेनेटिक डिफेक्ट के करेक्शन को जीन थेरेपी कहा जाता है, और पहला जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची का किया गया हैविंग एडीए डिफिशियंसी डिजीज. एडीए दैट इज एडिनोसिनेज डीएमिनेज deficiency, and adenosine deaminase enzyme is very crucial for the functioning of immune system in children. बच्चों, तो चिल्ड्रन के अंदर जो है इम्यून पावर को मजबूत रखने के लिए, इम्यून पावर के फंक्शनिंग के लिए एडीए एंजाइम बहुत जरूरी है, और एडीए एंजाइम को कोड करने वाले जीन की कमी से बीमारी होती है, दैट इज सेड टू बी एज एडीए डेफिशिएंसी. और इसको करेक्शन करने के लिए, हम इसको करेक्ट करने के लिए हम जीन्स को इंसर्ट करते हैं, लेकिन अगर इसको एम्ब्रियो लेवल पे ही डिटेक्ट कर लिया गया होता तो इट कुड बी परमानेंटली क्योर, और हम जीन को वहां पर इंसर्ट करते तो परमानेंटली क्योर हो जाता. लेकिन बाद में पता चलने की वजह से एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी या बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का सहारा लिया जाता है, जहां पर बोन मेरो से पर्टिकुलर जीन आइसोलेट करके और वहां पर उस बच्ची के अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया, जिसके थ्रू उसके अंदर जो एडीए एंजाइम का सिक्रेशन होना शुरू हो जाए और इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग शुरू हो जाए. दैट इज जीन थेरेपी चिल्ड्रन, द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट. ओके, सो gene therapy, you have seen that in gene therapy the correction of genetic defect is being done. The most common vector is virus nowadays that has been genetically altered. अभी हमने टीआई प्लास्मिड जब मैंने आपको बताया तो मैंने आंकोजेनिक वायरसेस के बारे में बताया कि उनके जेनेटिकल फेनोमेना को अल्टर्ड कर दिया गया है टू कैरी नॉर्मल ह्यूमन डीएनए, ताकि वह ह्यूमन डीएनए को भी कैरी कर सकें, और इस तरीके से जीन थेरेपी की जाती है बच्चों. तो जीन थेरेपी के लिए जो कॉमन वेक्टर यूज हो रहे हैं इस समय वो वायरसेस यूज हो रहे हैं, और आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि इनकी जो जीन डिलीवरी करने की क्वालिटी थी डिजीज काज करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है. चाहे वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंट का प्लास्मिड हो या ऑन्कोजेनिक वायरस का प्लास्मिड हो, उस कंडीशन में हम उनके जेनेटिकली अल्टर्ड कर दे रहे हैं और उनके अंदर इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं so that they can carry human DNA also. And since they can carry the human gene or the portion of DNA, so and through biotechnology we can multiply, हम multiply कर सकते हैं several replica में उसको हम copy कर सकते हैं बच्चों. So this one is the significance of gene therapy. Third one is the molecular diagnosis. As you know that the lower concentration of pathogens, bacteria, viruses cannot be detected easily, and when they are detected then the concentration become very high. Okay, so if in the early stage the nucleic acid is being taken from the pathogens and amplified through PCR, then it can be easily diagnosed in earlier level, that is known as molecular diagnosis. And doctor also believe on molecular diagnosis because it is based on the information of DNA, and we know very well that DNA is the genetic material children. So molecular diagnosis is precise and accurate also. Now see the transgenic animals. As you know, transgenic animals is one that carries a foreign gene that has been deliberately inserted into its genome. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर एक फॉरेन जीन या ह्यूमन जीन को हम डिलिबरेटली इंसर्ट किए गए रहते हैं, और तब इस एनिमल को कहा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. बच्चों, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग्स, शिप, कैटल्स, माइस, तमाम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं, बट यू शुड नो that more than 95% of transgenic animals are mice. और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू बच्चों हम वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग, केमिकल्स के सेफ्टी की टेस्टिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, डिसऑर्डर्स की ग्रोथ किस तरीके से हो रहे होते हैं, इन तमाम चीजों को हम
ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू स्टडी करते हैं और वैक्सीन या केमिकल की सेफ्टी की भी टेस्टिंग करते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी काउ प्रोड्यूसिंग ह्यूमन मिल्क प्रोटीन दैट इज अल्फा लैक्ट एल्बुमिन 2.4 ग्राम पर लीटर. जबकि नॉर्मल काउ मिल्क में आपको ह्यूमन लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन नहीं मिलेगा बच्चों. ह्यूमन लैक्ट एल्बुमिन इज प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन जीन. और यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं ट्रांसजेनिक काउ है, having an altered gene, an external gene, having an human piece of DNA. Okay, that's why it is said to be a transgenic gene, and it produces alpha lact albumin protein 2.4 gram per liter of milk. So this one is the quality of transgenic animals you are seeing here. And the last topic we have seen, that is biopiracy. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी करना, उसको पेटेंटिंग करा लेना. मैं बताया भी था, पायरेसी का मतलब पेटेंटिंग कराना, और बायो मीन्स लाइफ. तो यहाँ पर पेटेंटिंग ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोपायरेसी. आई हैव टोल्ड यू दैट इंडिया हैज 2 lakhs वेराइटीज ऑफ राइस. हमारे देश में 2 लाख वेराइटी राइस की है बच्चों. ओनली 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर प्रेजेंट. बासमती राइस की केवल 27 वेराइटीज है, डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज. और उनका क्लास, एक बार की मैंने बताया भी था, अमेरिकन पर्सन ने यहाँ के बासमती राइस का अमेरिकन सेमी ड्वार्फ से क्रॉस करा के और फिर पेटेंट भी करा लिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट से. लेकिन बाद में इंटरनेशनल लेवल पे प्रयासों के जरिए उसके पेटेंट को हटाया गया. हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को भी बच्चों, हमारे टर्मरिक के पेन किलिंग नॉलेज को, हमारे नीम के अजा डायरेक्टा इंडिका, हमारे नीम के जो एंटीवायरल क्वालिटीज, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज, स्किन सेविंग क्वालिटीज है, उनको हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं. ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा. यू नो दैट इंडिया वाज विश्वगुरु, बट इफ अदर कंट्रीज or other multinational organizations are using our biological resources or our traditional knowledge towards biological resources without paying proper compensatory amount or without taking any authority, then it is said to be as biopiracy. You are seeing here, children, that biopiracy is defined as the illegal appropriation of live microorganisms, plants and animals including human beings and the traditional knowledges that accompanies it. हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को या हमारे बायो रिसोर्सेज को अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी या कंट्री के द्वारा इलीगली यूज किया जा रहा है विदाउट टेकिंग अथॉरिटी और विदाउट पेइंग कंपनसेटरी अमाउंट, सच एज कॉल्ड एज बायोपायरेसी. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव बीन सर्चिंग फॉर रिच नेचुरल रिसोर्सेज एवरीवेयर टू मेक आउट अ प्रोडक्ट along with the traditional knowledge prevailing here, then पेटेंट, उसके बाद पेटेंट भी कराते हैं एंड मेंट मनी आउट ऑफ इट, और उससे पैसा भी कमाते हैं. बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा देश बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में नंबर 1 पर है. हमारे देश में जितनी बायोडाइवर्सिटी है उतनी बायोडाइवर्सिटी शायद ही पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले, और इसीलिए पूरी दुनिया हमारे देश पर आंखें गड़ाई हुई है, हमारे बायो रिसोर्सेज पे आंखें गड़ाई हुई है, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज पे आंखें गड़ाई हुई है. दैट्स व्हाई वी शुड बी प्रिकॉशियस. हमें खुद से प्रिवेंटिव होना होगा. हमें खुद से इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे बायो रिसोर्सेज को मल्टीनेशनल कंपनीज या दूसरे कंट्रीज बायोपायरेसी करके यूज करने लगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई वी शुड प्रिकॉशियस. हमें सावधान होगा, हमें भी वी शुड बी अवेयर. हमें सावधान रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा regarding to this. So my dear kids, in this way we have just discussed the principle of biotechnology and application of biotechnology in the same class. मैं चाहता था कि प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस को एक साथ में देखेंगे तो कहीं न कहीं क्लोनिंग वेक्टर्स को कोरिलेट करने में भी आसानी होगी. 9 स्टेप्स जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का देखा है उसको पढ़ने में भी आसानी होगी. तो 9 स्टेप्स आप देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, प्लस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का चुनाव कैसे ज्यादा अच्छा करें, कैसे सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर हमें मिल पाएगा, और किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम को यूज करें, यह चीजें ज्यादा क्लियर हुई होंगी. एज वेल एज वी हैव सीन द पीसीआर, वी हैव सीन अबाउट बायोरिएक्टर्स, वी हैव सीन अबाउट टीआई प्लाज्मिड. तो ये सभी चीजें, वी हैव सीन द वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, एंड देन वी हैव सीन द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक in different fields.
in agriculture field. We have seen the BT cotton, resistant plant, RNAi. In medicinal sector, we have seen the genetically engineered insulin, the gene therapy. We have seen the molecular diagnosis, and at the same time, we have seen the transgenic animals also. We have discussed about some ethical issues related to biotechnology, and finally, we have seen about biopiracy. Now, my dear kids, thank you very much for your attention. And in the next class, we shall start the next topic. Thank you very much.